Hello. Good morning, dear student. Today we are learning about Hornbill chapter 1 poem, a photograph written by Sterling Tolstoy. Now, see about the summary. In this poem, writer wrote about his mother's photograph. When her mother went to Seoul. Okay? After some times, when her mother died, she watched her mother's photograph. At that time, she looked about his mother's photograph and all things. First, the poem photograph is composed in blank verse. यहाँ पे blank verse यानी there is no transcript in this poem. The poem consists of 19 lines in total. In this poem, there is 19 line poem. This poem written in the first person. यानी the speaker of the poem is the poet herself. Okay? ये जो poem है उसका जो speaker जो कौन है, ये जो poem बोला है, ये जो राइटर है स्टर्लिंग टॉल्स्टॉय, वो खुद ही अपनी ये जो poem है वो लिखता है और अपनी बात यहाँ पे बताता है फोटोग्राफ के। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग plan. The poet describes a photograph that captures interesting moment of her mother's child when she went for a sea holiday with her two girls. तो ये जो poem है उसमें अंदर ये जो poet है उसने डिस्क्राइब किया गया है फोटोग्राफ। जिस फोटोग्राफ के अंदर क्या है कि उसकी मदर और उसके साथ उसकी जो कजिन गर्ल जो थी सिस्टर जो थी वो दोनों साथ में सी हॉलिडे के लिए गई थी। तो उस टाइम का एक फोटो है जो उसने कैमरा करके कैप्चर किया हुआ है और उस फोटो को जब उसके घर में उसको लटकाया हुआ है तो उस फोटोग्राफ को देख के ये जो पोएट है उसने अपनी पोएम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कैसे उस फोटोग्राफ के अंदर उसने किया गया उसने ऑब्जर्व उस बात को यहाँ पे वो बताया। Here the poet talk about the two contexts of the poem. The first, the internal state of nature. Second, the transitional state of human being. Eternal state यानी mortal, immortal, immortal और ट्रांजिशनरी यानी mortal, यानी ट्रांजिशनरी यानी अनस्टेबल और एटर्नल यानी जो इनक्रेडिबल जो कभी भी इनफिनाइट जो बोलते हैं एटर्नल यानी इनफिनाइट। तो यहाँ पे जो पोएट ने जो दो कॉन्ट्रास्ट को बताया है एटर्नल स्टेट ऑफ नेचर यानी जो नेचर की वो बात बता रहे और ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग जो शॉर्ट टाइम में होते हैं और जो एटर्नल स्टेट ऑफ नेचर जो होती है वो लॉन्ग टाइम यानी वो कभी भी खत्म नहीं होती यानी वो infinite. Let's talk about the poem summary. The poem consists of 19 lines in total. Their line is not divided into stanza. It is a meaningful part. Here this poem is written in the first person. Hence, it is safe to assume that the speaker of the poem is the poet herself. The poem photograph is composed in blank verse. Its title is very much appropriate as it reminds the poet of her mother.
photograph is something that captures certain moment of someone's life. The person might change in course of time, but the memory attached with the photograph, that is eternal in this poem, the poet's mother. He is no more, but the photograph make her memories come alive. तो ये जो फोटोग्राफ है उसके अंदर जो उसकी जो मेमोरी है, उसकी मदर की जो मेमोरी है उसको हमेशा उसकी जो मेमोरी है उसको हमेशा कैसे अलाइव, यानी वो हमेशा उसकी जो लाइफ है वो हमेशा जीवन में उस फोटोग्राफ को देखती है। तो उस फोटोग्राफ की जो मेमोरी है वो कभी भी एंडलेस नहीं है, वो हमेशा एटर्नल, ओके, एटर्नल, वो कभी भी खत्म नहीं है। देन द मदर्स स्वीट फेस और हर cousin heavily place of for which have all changed in time, but the moment captured in the photograph still give happiness to the poet's mother when she view it 30 to 40 years later. तो ये जो पॉइंट है उसकी लाइफ के अंदर उसकी मदर का जो फोटोग्राफ उसने जो देखा है उस फोटोग्राफ को देख के उसको हमेशा हैप्पीनेस फील होती है, क्योंकि उसके साथ उसकी जो कजिन सिस्टर थी उसकी मदर थी, तो उसने हाईली ड्रेस अप किया हुआ है और उस ड्रेस को वो देख के उस फोटो को देख के उसकी मदर को हैप्पीनेस फीलिंग होती है towards the mother. Then she viewed in 30 to 40 years later. और ये जो फोटोग्राफ है वो कब देखती है 30 to 40 years later, वो उसके बाद वो फोटोग्राफ देखती है। Then the photograph is a tribute to her mother. Okay? तो ये जो फोटोग्राफ है, ये जो पोएम उसने लिखी है वो अपनी मदर के लिए लिखी है। The poet is looking at an old photograph of her mother when her mother was a little girl. Okay? Photograph captures a moment in the time and also the emotion felt when the photograph was taken. तो ये जो फोटोग्राफ थी जब उसने कैप्चर किया होता तब इसकी मदर यानी पोएट की जो मदर थी वो छोटी थी, यानी जब यहाँ पे जब पोएट है उसकी कितनी उम्र है, इतनी उम्र उस टाइम जब फोटो कैप्चर किया होता तब उतनी साल की एज उसकी मदर की थी। The photographs of her mothers playing on beach accompanied with her two cousins. Her mother is the elder one among the two, and she is holding the hand of her other cousin. तो ये जो उसकी जो मदर थी, पोएट की जो मदर थी वो सबसे बड़ी थी और तीनों सिस्टर यानी तीनों जो ये गर्ल जो थी वो एक दूसरे के साथ उसने हाथ पकड़ के रखा और उस फोटोग्राफ के अंदर है वो जो मोमेंट है उस मोमेंट को याद पोएट बता रहा है। The weather was windy at that time and the rain was flying on their face when the uncle took the photograph. और उस टाइम की बात करें कि जो वेदर जो था वो कैसा था, वो भी विंडी, यानी वो पवन जो आ रहा था उस पवन के कारण क्या है उस फोटोग्राफ के अंदर उस तीनों सिस्टर का जो हेयर है वो थोड़ा फ्लाई था, यानी उस हेयर की बात है कि जिस फोटोग्राफ के अंदर वो हेयर दिख रहा है तो वो फ्लाई कर रहा है कि उसके कारण इस फोटोग्राफ के अंदर ये जो मैन था उसने एक फोटोग्राफ के अंदर कैप्चर कर रखा। All the three children had happy and smiling expression on their face. ये तीनों सिस्टर के फेस के ऊपर हमेशा हैप्पी और स्माइल दिखती है। The poet expressed the view that her mother had a sweet face when
फेस है वो इतना स्वीट दिख रहा था कि उस पोएट की अभी तक उस टाइम यानी जब फोटो उसने खींचा था उसकी मदर ने पोएट की मदर ओके तो उस टाइम क्या है कि उसकी उस टाइम उसकी बॉर्न नहीं हुई यानी उसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी वो बात करें पोएट की उस टाइम की जो बात है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था मेरा बॉर्न भी नहीं हुआ था उस टाइम का एक फोटोग्राफ को बताता है The sea was having the transient feet of the children. Transient feet refer to the changeable nature of human being. That is say, feet could be changed with time. तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपनी लाइफ के अंदर ये जो ट्रांजिशन फीट है उसकी वो बात कर रहे हैं आपने देखा होगा कि सी बीच के ऊपर आपके पास जो सैंड होती है यानी जो बीच के पास जो सैंड होती है उस सैंड के अंदर हम जब वहाँ पे हम खेलते हैं तो क्या होता है उसके अंदर हमारे जो पैर है वो दिखते हैं यानी उस पैर जो है वो हमें दिखते हैं उसके बाद क्या होता है जब सी का जो पानी है वो जब बीच की तरफ आता है तो उसके कारण क्या होता है वो जो पेड़ जो पड़ा हुआ है उसके जो जो लेप जो पड़ा हुआ है यानी उस पेड़ का जो लेप जो पड़ा है उसकी वो बात है कि वो चला है तो एक ट्रांजिशन फीट है ट्रांजिशन का मतलब होता है शॉर्ट टाइम में ठीक तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन का मीनिंग जो बताया तो वैसे शॉर्ट टाइम में कि वो कभी भी खत्म हो सकता है ओके तो अनस्टेबल है तो उसकी वो बात करें कि वो ट्रांजिशन फीट की वो बात करें कि वो उसकी नेचर के साथ है वो कभी भी चेंज हो सकता है The sea is unchangeable and it was washed away the footprint on the sand. Okay? तो उस फुटप्रिंट जो सैंड के ऊपर जो पड़ी है वो चली जाती इसके कारण ये जो पोएट ने बताया कि जो ट्रांजिशन फीट है उसकी जो फुटप्रिंट जो पड़ी है वो एक ट्रांजिशन फीट है और यहाँ पे जो नेचर की बात जो बताई वो अनचेंजेबल तो ट्रांजिशन फीट यहाँ पे क्या बताया चेंजेबल और यहाँ पे जो ह्यूमन नेचर की जो बात सी को जब नेचर को बताया सी यानी जो सी है उसको यहाँ पे अनचेंजेबल जो कभी भी चेंज नहीं होता The sea is unchangeable and it was washed away with the footprint on the sand. Similarly, the photograph and the memories have not changed, while time has changed and so has the poet mother's wish no more. Okay? तो यहाँ पे जो जैसे कि दोनों लाइन का कंपेयर किया गया है सी और ट्रांजिशन फीट के साथ उसकी जो मदर का जो मेमोरी है उस मदर की मेमोरी और ये जो फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे उसने कंपेयर किया कि उसकी मेमोरी और उसकी मदर का जो फोटोग्राफ है वो कभी भी चेंज नहीं वो भी अनचेंजेबल इसलिए यहाँ पे जो पोएट ने उस मेमोरी की वो याद है वो कभी भी चेंज नहीं और उसकी मदर अभी रही यानी उसकी डेथ हो गई तो उसकी लाइफ के अंदर ये वो बात होता है कि मेरी मदर भले चली गई मेरी मदर की भले बॉडी चली गई लेकिन उसकी मेमोरी और उसका जो फोटोग्राफ है वो अभी भी अनचेंजेबल अनमोर्टल इनमोर्टल इनफिनाइट तो एटर्नल बता रहे हैं उसकी मेमोरी और फोटोग्राफ को यहाँ पे एटर्नल बता रहे हैं लेकिन उसकी मदर की जो बॉडी है उसको यहाँ पे ट्रांजिशनरी स्टेट के अंदर बता रहे हैं ओके नेक्स्ट the poet recalled that when her mother used to take a look at the photograph after 30-40 years she would laugh hard तो ये जो पोएट है वो अपनी मदर का जो फोटोग्राफ है वो 30-40 साल के बाद जब देखती है तो उसको उस फोटोग्राफ को देखकर उसको हंसी आ रही then the poet's mother would laugh and say how her cousin Betty and Dolly were dressed up for the beach और उसकी मदर जो है वो भी लाभ कर रही है कि
क्योंकि उसके साथ जो उसकी दोनों सिस्टर थी, उसकी यानी पोएट की मदर की दो सिस्टर जो थी कजिन सिस्टर, तो उस सिस्टर दोनों का नाम यहाँ पे बताया गया है देवी और बेबी। तो उस दोनों ने कैसे उसने ड्रेसअप किया हुआ है उसकी वो बात कि इस बीच के ऊपर वो कैसे कपड़े पहन के आए। The sea only was the mother's past and her laughter was the poet's present. तो यहाँ पे फिर से पास्ट और प्रेजेंट की बात बता रहे हैं कि उसकी मदर का जो सी ऑलरेडी था वो पोएट के लिए क्या बन गया, वो पास्ट बन गया। लेकिन उसकी मदर की जो लाफ्टरनेस है यानी उसकी मदर की जो हंसी है वो पोएट के लिए प्रेजेंट बन गई। ओके, there had been huge change in the lives of the mother and the daughter. Both the mother and the daughter had learned to accept the losses that fate has imbibed their faith. Okay? तो ये जो दोनों है उसकी मदर और उसकी दोनों डॉटर है वो अपना जो फेट है यानी उसका जो उसकी जो डेस्टिनी है उसकी मदर और उसकी ये जो डॉटर है यानी गुड वाइफ, तो उस दोनों की जो डेस्टिनी है वो चली जाती है। ओके, उसका जो फेम जो था वो चले जाता है और वो दोनों उस डेस्टिनी को क्या करते हैं, इम्बाइब, यानी वो अपनी अपनी जो मेमोरी है उसको वो आत्मसात करते हैं कि उसको याद करने के बाद वो आत्मसात करते हैं। The poet's mother is no more, and the silence of the little girl in the photograph has silenced the poet. तो उसकी जो मदर वो अभी गई यानी वो उसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसकी फोटोग्राफ के अंदर जो भी स्माइल दिख रही है वो स्माइल उस पोएट के लिए क्या हो गई है, साइलेंस बन गई यानी पीसफुल बन गई, शांत। तो वो बात करती है पोएट क्या, तो उसकी मदर की वो बात करें कि वो साइलेंस है। She is left without words. The photograph reminds her of her mother. लेकिन इस फोटोग्राफ के अंदर उसको रिमाइंड करते हैं उसकी मदर। Shirley Dawson feels and sad seeing the photograph of her dead mother. तो ये जो शर्ली डॉल्सन है वो पोएट अपने फोटोग्राफ उसकी मदर का फोटोग्राफ देख के वो सैड हो गई और वो कैसा फील कर रही है, बहुत ही दुख महसूस कर रही है, बहुत सैड हो गई और उसकी मदर को देख के वो अपनी फीलिंग को वो बता रही है। While her mother had the photograph of her dead mother. तो यहाँ पे जो मदर ने जो फोटोग्राफ जो कैप्चर किया था उसी फोटोग्राफ को यहाँ पे पोएट ने फिर से बताया कि when her mother had derived a sense of happiness and laughter when she used to see the feeling of loss has silenced the poet. तो उसकी मदर का जो फोटोग्राफ है उस फोटोग्राफ को देख के उसको उसकी हैप्पीनेस यानी जो हंसी है उसको देख के ये जो पोएट है उस पोएट की जो फीलिंग है उसके अंदर उस पोएट को क्या बना देती है, साइलेंट, शांत बना और चुप करा देती है। Transient fit is transfer epithet in the poem. Epithet का मतलब क्या होता है, जो उसका जो नाम होता है वो नाम अब कैसा हो गया है, ट्रांसफर हो। अब फोटोग्राफ, ठीक, तो ये जो ट्रांजिशन फिट है यानी जो शॉर्ट टाइम रील जो उसके अंदर जो थी वो कैसी बन गई है, फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ बन गई। It refers to the human feet, but it is used to describe the lack of permanence of human life. लेकिन ये जो फोटोग्राफ की जो पॉइंट जो पोएट ने बताई है वो क्या रेफर करती है कि जो ह्यूमन फीट जो है उसको यूज करके यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ के अंदर लेक ऑफ परमानेंस है, तो उसकी लाइफ के अंदर ये जो खामी उसके अंदर जो दिखा रही है कि ह्यूमन लाइफ के अंदर ये जो ह्यूमन फीट की तरफ ये जो लाइफ है, ह्यूमन फीट यानी जो
ट्रांजिस्टर स्टेट जो था वो शॉर्ट टाइम के लिए जो मेमोरी रहती है, वैसी तरह ह्यूमन लाइफ के अंदर वो परमानेंटली वो बन गया कि वो उसकी मेमोरी के अंदर शॉर्ट टाइम। उसके बाद क्या हो जाता है, ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं कि कोई अगर व्यक्ति है तो उसको जब मिलते हैं तो उसको जब काम होता है तब हम उसको याद करते हैं। अब आपका जब खुद का काम जब पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम उसको याद नहीं करते। इसलिए क्या बताया कि ह्यूमन बीइंग को याद है वो कंपेयर करें कि उसकी लाइफ भी ऐसी बन गई कि ह्यूमन बीइंग की तरह ये ट्रांजिस्टर स्पीड जो तो उसने उस वर्ड को उसके अंदर डिस्क्राइब किया। लास्ट, the C is the constant and eternal, while the human which are being worsened by the C are transient। तो ये जो दो कांस्टेंट स्टेज जो बता है कि इंटरनल स्टेज और जो ट्रांजिस्टर स्टेज जो बता है, उसके अंदर ह्यूमन की जो बात करें विच आर वर्सेड बाय द सी। तो ये सी के तो ये जो ह्यूमन फीट का जो फुटप्रिंट जो उस सी के अंदर जो सैंड के ऊपर जो दिख रही थी वो चली जाती है बाय सी। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन की बात की है और ये जो दोनों की जो बात की है उसकी यहाँ पे बात है। Okay, I hope you understand this summary and meaning. Okay, see you next week.